Good afternoon, we welcome you, ma'am. Thanks for coming your time. A moment where thoughts turn into words and words into inspiration. It is my great honor and privilege to warmly welcome our chief guest, respected Ma'am Bhanu Prabhaji, Indian Administrative Service, Commissioner Secretary, School Education of UT, Ladakh. With immense joy and much contentment, we extend our heartiest congratulations to Ms. Nufaiza Nazir and her parents on very successfully completing her book called The Serene Aura. Thank you, everyone. So the name of her book is The Serene Aura, which is very beautifully written by her, and we'll get to know about this book from the author herself very soon. What she has accomplished at such a young age is truly exceptional and highly significant and has made all of us very proud and happy. Writing this book has made Nufaiza become the youngest female author in Ladakh, setting a record for which we are really happy and we congratulate her. Round of applause. Ms. Nufaiza, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah peace, mercy and blessings be upon all of you. Respected Chief Guest Ma'am Bhanu Prabha, IAS Commissioner Secretary School Education UT Ladakh, Advocate Muhammad Shafi Lasu, President Anjuman Moinul Islam. Today is a moment of joy and pride for me as I stand here as an author. Through the pages of my book, I have tried to capture the silent strength of mountains, the soothing whisper of winds, and the peaceful rhythm of our natural surroundings. The Serene Aura is not just a book, but a humble effort to remind us all to reconnect with nature, to appreciate its simplicity, and to protect it for future generations. And it's very essential that we protect our environment, and we need to have that mindfulness that nature is very beautiful. As we can see, Ladakh is rich in its culture and heritage, and I love it a lot. In today's fast-moving world, we often forget how deeply nature nurtures our mind, body, and soul. The Serene Aura. It is about how beautiful and ever-changing nature is, and how we can find a deep connection with the world around us. The art of manifestation. That is the 5th chapter of my book, The Serene Aura. It will tell you that if we truly believe in something and focus our energy on it, we can make our dreams surely come true. I wanted to show how we can grow alongside nature to become our best self. Such loving teachers, and I'm very grateful. And I'm extremely grateful that I have my loving parents who always support me whenever I say A voice and a journey. Let's give a huge round of applause.
by author Nufaiza Nazir, everyone. Please give her a big round of हमारे डाइट के प्रिंसिपल फिजा मेहदी साहब, जैसा कि शुरुआत में भी बोला था, आज ये कोई आम किताब या कोई आम बुक लॉन्च नहीं है. इट इज रादर आई फील लिटिल थ्रिल्ड टू बी हियर कि एक हमारी बच्ची who was part of this school has now grown up to an author, to be the youngest female author of Ladakh, and trust me, we all have been fortunate कि हम इस किताब का एक छोटा सा हिस्सा बन सके. जैसा कि मैडम वाइस प्रिंसिपल ने भी बोला था कि कई बार जब हम करियर्स की बात करते हैं, स्पेशली एजुकेशन में, तो हमारा एम्फेसिस डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट, टीचर्स यहीं तक रह जाता है, या फिर कुछ हमारे जैसे सरकारी ऑफिसर्स तक रह जाता है. बट द वर्ल्ड इज बियॉन्ड दिस, एंड द सूनर वी appreciate it, the better world probably we would be able to carve for all of us. See, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस किस शिद्दत के साथ उसको किया गया, किस जुनून के साथ उसको किया जाता है, उसी से वो काम उतना ही अच्छा, उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है. एंड दिस वी हैव सीन टुडे व्हेन Nufaiza was mentioning about her inspiration to write a book. See, आई एम श्योर आज से अगर 3-4 Nufaiza ने कभी बोला होगा कि मैं एक अच्छी ऑथर बनूंगी, तो शायद कुछ पेरेंट्स हमारे जैसे होते हैं और उनको बोलते नहीं बेटा पढ़ाई पे तुम ध्यान दो, तुम यहाँ ये उलझुल की बातों में लग गए हो. Probably somebody like us, some parents like us, some relatives like us would have pulled her down. But ये बहुत फक्र की बात है Nufaiza, आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स के लिए, कि जिन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान ना देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा वही करेगा या हमारी बेटी वही करेगी जो वो करना चाहती है. तो आई मस्ट से यू आर जस्ट ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स लाइक देम. अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ ऑथर्स इन दिस रूम, देयर आर लॉट ऑफ डांसर्स, म्यूजिशियंस इन दिस रूम, जो शायद कुछ और करियर करना चाहते हो, मगर पेरेंट्स के प्रेशर में या रिलेटिव्स के प्रेशर में या और कम्युनिटीज के प्रेशर में वो सब हम कर नहीं पाते. बच्चे के लिए जिसके दिल में कुछ जुनून है कुछ नया करने का, जैसा मैडम ने भी बोला कि हमें अपने दायरों से बाहर निकलकर देखना चाहिए कि मैं एक आम डॉक्टर बन सकता हूँ, एक आम टीचर बन सकता हूँ, मगर मैं एक बहुत खास, बहुत प्रख्यात, हम सबको करना है कि क्या हम एक आम बनकर रहना चाहेंगे या हम लाइफ में कुछ बहुत जुनूनी, कुछ बहुत खास करना चाहेंगे. और पेरेंट्स यहाँ ज्यादा है नहीं, मगर जितने भी लोग हैं, हमें एज अ टीचर, एज अ पेरेंट या एज एन एजुकेशनिस्ट अगर मैं कह सकूं, कुछ लोग हैं, और एज अ डिपार्टमेंट हमें देखना है कि हमें अपने बच्चों को वो माहौल देना है, वो एनवायरनमेंट देना है कि जहाँ बच्चा बिना डर के, बिना उस बंदिश के अपने लिए कुछ नया सोचने की हिम्मत रखे और Nufaiza की तरह आगे बढ़कर उन सब चीजों को साकार करने का हिम्मत रखे. तो वो हम सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि प्लीज बच्चे करियर्स की तरफ ही ज्यादा एनकरेज करना चाहिए ऑफ कोर्स, बट उसमें बांध के ना रखे. अगर बच्चा बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है और कुछ हटकर कर सकता है, तो हमें उस तरफ उन बच्चों को इनकरेज करना चाहिए. सो आज का दिन, जैसा कि मैडम ने भी बोला, कि हम सबको इंस्पायर करता है, ना केवल कि हम अपने बीच और Nufaiza's बना सके, मगर हम सबको भी Nufaiza के पेरेंट्स की तरह, उनके टीचर्स की तरह, उनकी कम्युनिटी की तरह इतना फोर्थकमिंग, इतना विजनरी होना पड़ेगा कि अगर हमारा बच्चा कुछ लीग से हटके करना चाहे तो हमें वो करने देने की उसको आज़ादी देनी चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एक और कोई करियर नहीं बनाना चाहते हैं, we are here to support you. So with this, I once again congratulate the entire Islamia family कि आप लोगों ने इतना अच्छा, I would say, किला तराश के दिया लद्दाख को कि आज हमारी सबसे यंगेस्ट साल हम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे म्यूजिशियन, इंजीनियर्स, मतलब यंगेस्ट पेंटर्स, इन सबको भी हम इसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ता हुए देखें. ये हमारे लिए लद्दाख के लिए बहुत फख्र की चीज होगी. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट Nufaiza to please sign this for me. It will be a privilege to have this signed by you so that I can relish it for the rest of my life. a big moment for not only for her and her proud parents, but it is a whole a big
proud moment for whole of the Islamic Public Day family. Please everyone give a big round, please give a big round of applause everyone. Thank you. Thank you. I'm so proud of you. You have all our okay. Thank you. Oh no, nothing like that. Thank you, dear. Thank you. क्वालिटी थोड़ा लगा आपको बच्चे को तो ज़्यादा वो होगा जो जाएगा उसको जो है इंकरेज मिलेगा इससे बेहतर बुक लिखने की कोशिश करूँगा थोड़ी सी चीज़ उसके बाद कि थोड़ा सा हमारा रिकमेंड जो है लाइफस्टाइल जापानीज लाइफस्टाइल पे एक बुक है इकिगाई जी स्टोरी से तेरे हो सकता है ये कि जब हमारा रिकमेंड जो है ते किताब उससे चीज़ लाइफ कैसे गुजरता है लाइफ को कैसे चलाना है लाइफ से मजा कैसे लेना है और इस लाइफ से जो है दूसरों को कितना फायदा दे सकता है वो किताब आप लोग जरूर पढ़ेंगे और टीचर भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ते चौकसी किताब से ना जिसे ते किताब दिखान भी जापानी जगह चीज यूज किया ओकिनावा से ठीक है ओकिनावा मी लोग ये सब थबल मम चाबी लोग गैजू छाकन मुल्ला बाजार लवा सोमा अगर मेट्रिक करते हो जैसे मैंने ओमांग योस्टो होता छू छू ना कता जैसे मैं छू आवे लोग गैजू पा मतलब गैजू पा मैंने कुर्सी जगह बोलते मैं ये सी जाके आदुक चलो मैं थुप्पा एक तंग में हो सकता जरा मानो ले लाइफ स्टाइल बजू के लोग तेना कमरा किराया चला चला ज्ञान थे वक्त कलम थो तो चीज क्या होता है ना कौन फुट है बेट न तो कौन लाउस से योगा चुनता वर्जिश चुनता डोलत क्या तेरा उसको तेरे कौन ग्रीन टी थोड़ा तेरा जो ना छासिना चूचू छासिना छोड़मा था वाला तेरे ते करने सच्चे से कोशिश करो ये वो शायद ना कुछ बहुत चाट दो चालेंगे सर शायद ना ये वो कुछ पंचे सेरिया विषय तेरे स्पेरा चिकते हो जरूर तेरे संग सीरिन ना ते मी भी जो आदत देवा हुआ है तेरे ते करने तंगे ये कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा शिक्षा दे किताब में ना ये लोग बांझी हरा हचिबो जापानी ना चीज़ ना हरा हचिबो ज़्यादा सी नून जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में है कभी भी पेट भर के मत खाओ तो हम तो सब सरा है मतलब क्या छचा जाओ मतलब प्लान से ना चाहिए ना कुछ चाहिए तो तेरे समाज हो तेरे 12 बजे तेरे 2 बजे सारा 4 बजे टी सारे वजन माने हुआ करे हुआ शायद 2 बजे रोज़ा हमारा क्या चोस पा फिर मोटापा भी आएंगे फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम भी शुरू होगा तो पर जिससे ना मी ते भी वो थरकेल भी नो कभी रह जुक्मा कदर चोंगे ना हालांकि गांव मना कदर में बशर्ते से ना चाह गुनाह में तो कोशिश बच्चों को यह होना चाहिए अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से संभालना है उसके पास हम तेरी निष्पाव मी क्या लग मुझे एजुकेशन थोपते अगर मी क्या लग रहा मेरे ना तो एजुकेशन को ठोला ते एजुकेशन को you know man so पर किस तरह की सुन विचार की खजी इस तरह की इंस्पायर छेना समारत तेज तरह इंस्पायर छाना आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे फायदे होंगे